Assalamu alaikum, everyone. I am Dr. Sara Sadaf. I'm working as Associate Professor and Head of Department Anesthesia, Critical Care, and Pain Medicine at Sheikh Zayed Medical College and Hospital Rahim Yar Khan. So today I welcome you all to the Cracking the Viva. This podcast is dedicated to all the candidates who have just appeared or will be appearing in MS exams or FCPS exams. So it's my pleasure to share some insights that I hope will benefit aspiring anesthesiologists. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजिर सैयद, my former resident, and she has just recently cleared her MS Anesthesia exit exam in flying colors. I congratulate you, Nazir, on your success, and I welcome you to this podcast. Assalamu alaikum. Thank you so much, madam. I'm privileged to be a part of this podcast. First of all, on the behalf of this platform, I would like to thank Almighty Allah and my parents. And special thanks to you, madam. Yes, madam, it's you who help me and support me in every leaps and bounds that comes across in this whole journey. Alhamdulillah. Blessed to be a part of your department, madam. Thank you so much, Nazish, and most welcome. So, Nazish, as you know, tonight we are here to talk about some important do's and don'ts of Viva exam. Yes? Yes, madam, exactly. Very true. There are so many queries and questions on the behalf of my fellow candidates as well as from my side. इंशाल्लाह इससे ये होगा कि कई सारे जो questions हैं, जो candidate के questions हैं और उनकी queries हैं, वो इस podcast को सुनने के बाद इंशाल्लाह हल हो जाएगी. श्योर इंशाल्लाह. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलें जी. तो ऐसा करते हैं नाजिश, हम अपने इस सेशन को पॉडकास्ट को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं. जनरल स्ट्रेटजीज फॉर वाइवा, और फिर हम ऐसा करेंगे कि इसके बाद टेबल वाइवा, टॉक्स और लॉन्ग केस को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो यू कैन आस्क मी व्हाटएवर इज कमिंग इनटू योर माइंड. Okay, madam, definitely. First of all, tell us what the absolute first thing you recommend to every candidate as they enter the Viva room. Means हमें Viva room में किस approach के साथ enter होना चाहिए कि एग्जामिनर के ऊपर हमारा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े एक कैंडिडेट का, कि इससे जो है कि वो उनका एंजाइटी लेवल या उनका कॉन्फिडेंस शेकी ना हो. Okay, that's a very good question, and I will try to be as brief and as crisp as possible. I will say just do maintain a confident and professional demeanor, and your body language, your non-verbal communication, and the eye contact with the examiner, it speaks volumes. That's very true, madam. Next question is definitely on the flip side. What's a common mistake a candidate do that immediately raises a red flags for examiners? यानी हम जब एग्जाम में एंटर होते हैं और एक सेशन शुरू करने लगते हैं तो कैंडिडेट से ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जो एग्जामिनर्स पे जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं? Okay, मैं इसमें बताती हूँ कि like in general, do not try to bluff or fabricate your answers. ठीक है, examiners can spot this immediately. If you don't know something, it will be better to just admit it honestly and state what you do. Secondly, do not interrupt the examiner while he is asking you some questions. Listen very carefully to your examiner questions and do not jump to the conclusions or interrupt. Because I will tell you that there are subtle hints in the questions and which you can miss. So do not rush to the answer, let it sink in. Definitely, madam. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हर कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि एक आंसर को एक क्वेश्चन किया जाए उसका आंसर करना है तो कैसे करना है? नॉलेज देखो, इसमें तो बहुत ही क्लियर और बहुत सामने की बात है कि जस्ट बी क्लियर, concise and structured in your responses. Like avoid randomly answering. Okay, start with the most important point. Use logical flow. Use numbering or points. Like you can say firstly, secondly, thirdly, just like that. मैं इसकी एक मिसाल दूंगी कि like if you have to tell, you have to enlist the effects of a drug. So go system wise. Start from head to toe. Don't go for haphazard. Like ठीक है. तो एक तो ये है कि आप इस तरह काउंटिंग करके बताएं कि 1 2 3 4 इसका ये है, और या फिर आप सिस्टम वाइज चलें, हेड से लेके हेड टू टो जाएं ताकि आपका कोई भी सिस्टम विजन मिस ना. राइट? डेफिनेटली मैडम.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हर कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि हाउ टू टैकल एंजाइटी एंड नर्वसनेस ड्यूरिंग दिस होल सिनेरियो. Okay, I will say don't let nerves completely paralyze you. While some nervousness is normal and is expected, for that, practice stress management techniques. I would suggest you have like go for focus on your breathing, uh, just for start. And if you really feel overwhelmed and truly feel overwhelmed, just take a brief pause to collect yourself and then avoid a disorganized answer. ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये कितनी हेल्पफुल है। ये सिर्फ आपके एग्जाम में होने वाली एंजाइटी को नहीं, ये आप अपनी डेली लाइफ में एग्जाम के दिनों में ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। जब भी आपने आंसर करना है, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ठीक है, ये जो आप एकदम से एंजाइटी में एकदम तेज तेज सांस लेने के दौरान बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपको बहुत ट्रबल होता है और आप बहुत नर्वस अपेयर होते हैं। ठीक है। Okay, madam, that's a very difficult thing to do, but this need a lots of practice, I guess. अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो मॉक के सेशंस होते हैं और क्रैश कोर्सेज होते हैं, इससे कितना कोई बेनिफिट होता है? अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं कि इसे लेने से तो हमारा टाइम जाया हो जाएगा, हम जो है वो इतना घर में ही बैठ के पढ़ लेते हैं जितना हम वहां जाके सेशंस लें। तो आप मुझे इस पे कुछ रोशनी डालें कि फिर ये कुछ बेनिफिशियल है, इनको लेना चाहिए? एब्सोल्युटली जरूर लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट टू द कैंडिडेट्स टू डू टेक दीज कोर्सेज नियर एग्जाम्स। ठीक है, इसके कई फायदे हैं। देखो, आप मेरी रेजिडेंट थी तो आई इनकरेज यू माई सेल्फ एंड गिव यू लीव नाउ टू गो एंड अटेंड सच कोर्सेज इन लाहौर एंड मुल्तान। क्यों क्यों किया था मैंने? बिकॉज इन दैट वे यू वर एबल टू मीट अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एग्जामिनर्स विद डिफरेंट माइंडसेट्स। ठीक है, ये जो आप कहते हो ना कि हमें नहीं पता कि फ्लाइंग एग्जामिनर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप जब क्रैश कोर्सेज पे जाते हैं और वहां पे 10-15 लोगों का एक ग्रुप होता है एग्जामिनर्स का, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर्स आपके मॉक्स प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, तो आप लोग उनसे मिलने का, उनको समझने का, अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। और सेकेंडली, इन मॉक्स यू विल बी एबल टू रिवाइज सो मच इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट विल बिल्ड एंड शार्पन योर टेबल वाइवर रिफ्लेक्सेस। इससे आपके रिफ्लेक्सेस बहुत बिल्ड होते हैं। ठीक है। जी मैडम, आई थैंक यू फॉर दिस, कि मुझे तो इससे बहुत फायदा मिला and it's that was very mind storming and encouraging as well as interactive sessions. अच्छा जी मैडम, अब जो है वो सेशन नेक्स्ट टॉक्स का है, उसके हवाले से सवाल आते हैं कि which is basically a task oriented assessment for of clinical skills. So the first question regarding this is, what's the golden rule the main do for approaching any talk station, because we have a limited time frame in this domain also. So what's your advice? ओके नाजिश, देखो सबसे पहले तो ये है कि टॉक्स इज अ वेरी डायनामिक पार्ट ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो मैं कैंडिडेट्स को यही हमेशा कहती हूँ, जैसे ही वो टेबल पर आते हैं, और अभी भी इस पॉडकास्ट के थ्रू भी मैं सबको यही मैसेज दूंगी, डू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड कंप्लीटली बिफोर यू बिगिन। ठीक है, दिस साउंड सिंपल, लाइक ऐसे लग रहा है हाँ ठीक है, हम सब कहते हैं कि हम तो पढ़ ही लेंगे सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, बट अंडर प्रेशर समटाइम्स ऐसा होता है, कैंडिडेट्स ऑफन मिस क्रूशियल डिटेल्स इन अ क्वेश्चन। ठीक है, सो एलोकेट जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू फुली कॉम्प्रिहेंड द टास्क, उसके बाद फिर आप आंसर करना शुरू करें। ठीक है। एग्जैक्टली मैडम। अच्छा मैडम, फिर इसी के हवाले से ये है कि इस टाइम मैनेजमेंट को हम अप्रोप्रिएट करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें अवॉइड करें कि हम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट आंसर कर सकें? अच्छा, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टॉक्स का इतना कम टाइम होता है इसमें। आई विल सजेस्ट नाजिश दैट डू नॉट गेट स्टक ऑन वन पर्टिकुलर टास्क और क्वेश्चन। ठीक, इतना कम टाइम होता है और टॉक स्टेशन टाइम लिमिटेड होते हैं। ठीक है, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद वन एस्पेक्ट, जस्ट कंप्लीट व्हाट यू कैन, मेक अ मेंटल नोट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेशन। ठीक है, अदरवाइज यू विल मिस अदर वैल्यूएबल पॉइंट्स। देखिए, मैं आपको बताऊं, टॉक्स के एक स्टेशन के 10 मार्क्स हैं और 10 मार्क्स टोटल है, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 6 होंगे, सबके किसी का 1 नंबर है, किसी के 2 नंबर है, किसी के, ठीक है, इस तरह उनकी इस तरह से उनकी सब क्वेश्चंस की नंबरिंग होती है, मार्क्स होते हैं। अगर आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आया, जस्ट फॉरगेट इट, इट्स ओके, उसके ऊपर पैनिक मत हो, जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखें।
आप अगर दो दो नंबर के क्वेश्चन के लिए या 2 नंबर के टास्क के लिए अपने बाकी 8 नंबरों को कॉम्प्रोमाइज मत करें, ठीक है। अच्छा, और ओके मैम। जी ओके, जी और मैडम। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आंसर आप करें बिल्कुल टू दी पॉइंट। जैसे कि अगर आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा गया है तो आप वो उतना ही करें, आप उतना ही करिए, ठीक है। डोंट गो इनटू द डिटेल्स लाइक हाउ यू विल बी गोइंग टू डू इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ऐसे मत करिए। लेट्स से कि अगर एक स्टेशन पे आपको कोई सोनोनैटमी, किसी नर्व ब्लॉक की सोनोनैटमी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कही गई है, तो जस्ट पिक द प्रोब, टेक द परमिशन फ्रॉम योर पेशेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट इट, ठीक है। अगर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन करें या प्रॉम्प्ट करें देन यू कैन आंसर इट, या डिटेल बताइए। अगर आपकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये मेंशन है कि जस्ट डेमोन्स्ट्रेट द सोनो एनाटमी ऑफ दिस ब्लॉक, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी करते हैं कि वो फिर उसको ना डिस्क्राइब करना स्टार्ट हो जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो हम उन्हें उनका उन्हीं का टाइम सेव करने के लिए हम उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करेंगे नहीं, करके दिखाइए, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बाकी हैं। तो जी। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। वही मैडम, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और टाइम डिपेंडेंट आंसर्स ही इसका मेन की होती है। अच्छा मैडम, ये तो हो गई टॉक्स की बातें। जरा टेबल वाइवा की तरफ आते हैं और टेबल वाइवा के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस हम शेयर कर लेते हैं। मैडम फिर ये भी बता दीजिए कि कॉमन मिस्टेक्स एक कैंडिडेट क्या करते हैं ड्यूरिंग टेबल वाइवा। बिल्कुल, टेबल वाइवा में मैं ये कहूंगी कि डोंट प्रोवाइड ओवरली लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इफ यू आर लाइक आस्क्ड to list 3 causes of hypertension, just list them. Don't go into extensive pathophysiology unless prompted. ठीक हो गया? And do not repeat the answer twice, thrice, or keep repeating the only 2 drugs you know, or the only 2 complications you. This will waste your time. ठीक है। देखो हमारा तो टाइम जाया नहीं हो रहा, हमने तो आधे घंटे में आपका वाइवा, टेबल वाइवा लेना है। तो ये क्या हो रहा होता है कि आप ओवर डिटेल्स में चले जाते हो, ओवरली डिटेल्स में चले जाते हो, या फिर आप एक ही अपने आंसर को आप नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक को ही रिपीट किए जा रहे हो। आप अपने शायद अपने दिमाग में, आप अपने माइंड में सोच रहे होते हो उसके बाकी की लिस्ट में क्या था। तो उसमें क्या होता है कि आप सब कॉन्शियसली 2 कॉम्प्लिकेशंस को रिपीट किए जा रहे हो, ठीक है। डोंट डू दैट। ये आपका बहुत टाइम जाया हो रहा होता है, आपको उस टाइम आइडिया नहीं हो रहा था। हम तो टेबल की तरफ होते हैं तो हमें अच्छे से आइडिया हो रहा था, और हम आपको फिर बीच में टोक भी देते हैं कि चलिए इट्स ओके, अगर नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि डोंट ब्लफ, डोंट यूज वर्ड्स लाइक आई थिंक, ठीक है। टॉक अबाउट द ऑथेंटिक फैक्ट्स विद एविडेंस, ठीक हो गया। तो ये वर्ड यूज करना वाइवा के दौरान के मेरा ख्याल है कि ये शायद ऐसे होता है, और शायद तो बिल्कुल यूज मत करें, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। ओके मैडम। अच्छा मैडम, मुझसे अक्सर कैंडिडेट जो है वो ये सवाल करते थे पहले भी और अब भी, कि जब हमें कोई क्वेश्चंस के जवाब, जाहिर सी बात है ओवरऑल तो हर चीज नहीं आती होती, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या हम उसको ऐसा क्या आंसर दें कि जो है वो हमारा एग्जामिनर उससे एटलीस्ट ना सेटिस्फाई हो तो अनॉय भी ना हो इससे। ओके, देखिए इसमें आपके पास अक्सर आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस हो सकती हैं कि या तो आपको उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, और हो सकता है आपको उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। अब अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, जीरो नॉलेज है, डू एक्नॉलेज इट, ठीक है। अगर आपको आंसर बिल्कुल ही नहीं आता तो आप एग्जाम, अपना टाइम जाया होने से बचाने के लिए आप उस क्वेश्चन को पास कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप उससे थोड़ा रिलेट कर रहे हो, ठीक है, यू ट्राई टू रिलेट इट समथिंग यू डू दैट यू नो, लाइक मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि हो सकता है कि आपसे उन्होंने कोई 4 जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के बारे में कुछ आपसे पूछा हो, ठीक है। तो मे बी आपको 4th जनरेशन सेफलोस्पोरिन की कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक फीचर ना पता हो, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आपको सेफलोस्पोरिन्स के बारे में तो पता होगा ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप बता सकते हैं उसका, ठीक है, और उनकी इंडिकेशंस बता सकते हैं, उनका स्पेक्ट्रम बता सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा मैडम, ये बताइए कि टेबल वाइवा चूंकि एक रैपिड फायर राउंड होता है, तो हम अपने आप को कैसे काम होके, कंपोस्ट होके आंसर करें ताकि हम जो है वो लिमिटेड टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट की पॉइंट्स को हिट कर सकें।
ओके, जैसे कि मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है और अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि डोंट लेट वन डिफिकल्ट क्वेश्चन डिरेल योर एंटायर परफॉर्म। ठीक, इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग। इट्स ऑलराइट। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो द आंसर and refocus on the next question. Your overall performance matters more than perfection on every single query, right? राइट मैडम, एग्जैक्टली। अच्छा मैडम, ये तो था टेबल वाइवा के हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब जो है वो लॉन्ग केस की तरफ चलते हैं। लॉन्ग केस तो वाकई एक जो है वो नाइटमेयर कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग होल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। माइंड ड्रेनिंग होता है और एक क्लिनिकल मैराथन कंसीडर किया जाता है। तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मैं ऐड करना चाहूंगी कि हाँ, ये कुछ ड्रॉबैक है अभी एफसीपीएस में भी है और अभी एमएस में के प्रोग्राम में भी है कि लॉन्ग केस स्ट्रक्चर्ड नहीं है। बाकी आपके पास टॉक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी की होती है, एग्जामिनर उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते। ठीक है, दे हैव टू गो विद द की। अच्छा, इसी तरह से जो टेबल वाइब है उसमें भी कैंडिडेट को भी काफी मार्जिन मिलता है कि और उसमें जो एग्जामिनर्स के ऊपर भी ये बात नहीं आती कि उन्होंने बिला वजह कैंडिडेट के आंसर को रॉन्ग कंसीडर कर लिया या इस तरह, या अपनी तरफ से कुछ ज्यादा उन्होंने पूछ लिया है। तो ये फायदा है टॉक्स का और टेबल वाइबा का कि वो स्ट्रक्चर्ड है और उसकी की मौजूद होती है जिसको फॉलो करना होता है। लेकिन लॉन्ग केस अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगी कि अभी तक स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाए हैं। एग्जैक्टली मैडम। अच्छा मैडम, ये जो पहला पार्ट होता है लॉन्ग केस का, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, फर्स्ट पार्ट तो एक कैंडिडेट ने इसी यही देना होता है। तो इसके हवाले से आप हमें क्या गाइड करेंगी कि जो है वो इसमें कम से कम हमारे मिस्टेक्स हों और कम से कम मार्क्स डिडक्ट हों? कि मैं इसमें ये कहूंगी कि ऑलवेज ट्राई टू लाइक प्रेजेंट अ फोकस्ड, रेलेवेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, आई विल रिपीट, फोकस्ड एंड रेलेवेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत जरूरी है। डोंट जस्ट से एनीथिंग, डोंट जस्ट से एवरीथिंग। ठीक है, डोंट जस्ट स्पिल एवरीथिंग जो आपने पूछा बस सब कुछ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? जो रेलेवेंट है वो बताएं। Highlight the like pertinent positive and negative findings that lead to your diagnosis and the management plan. Like for example, instead of just listing comorbidities, just explain why they are relevant to the anesthetic plan. इसकी एक और इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। आप पेशेंट एक मॉर्बिड ओबीस पेशेंट की हिस्ट्री ले रही हैं। एक मॉर्बिड ओबीस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए आपसे डायबिटीज हाइपरटेंशन को रिलेट करिएगा कि किसके साथ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। दैट्स व्हाई यू बीन आस्किंग। ठीक है, इसी तरह आप थायराइड को ले लीजिए। इतना बड़ा थायराइड है सामने पेशेंट की नेक के ऊपर एंड यू डिड नॉट मेंशन द डिफिकल्टीज यू विल हैव रिलेटिंग टू द एयरवे। और सेकेंडली आपने उसकी एयरवे एग्जामिनेशन उस तरह से नहीं की जैसे थॉरोली करनी चाहिए थी। फिर इसी में आ जाती है कि इन्वेस्टिगेशंस में आपने थायराइड के पेशेंट में एफओडीएल के बारे में देखो नहीं पूछा, या आपके जहन में उस टाइम स्किप हो गया व्हाटसोएवर। तो वो रेलेवेंट चीजें अगर आप एग्जामिनर के सामने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो उनके सामने जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हैं, या आपने हिस्ट्री में नहीं पूछा है, उसके बाद जब आपने प्रेजेंट करते हुए भी उनको मिस कर दिया, तो यहाँ हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते फिर। जी। ओके मैडम, इसमें जो अगली चीज ये है कि एक लॉन्ग केस की डिस्कशन करते हुए कौन सी ऐसी चीज है जो एक कैंडिडेट को अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है लॉन्ग केस में, क्योंकि की तो नहीं होती ना, ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इट्स ऑल अबाउट एग्जामिनर्स एंड अ कैंडिडेट फेसिंग ईच अदर। नादिश, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें यही कहूंगी कि कैंडिडेट्स को जो अभी फ्यूचर में एग्जाम देना है कि डू नॉट निग्लेक्ट, डू नॉट इग्नोर टू फॉर्मुलेट अ क्लियर प्रायोरिटाइज्ड प्रॉब्लम लिस्ट। ऑलवेज मेक अ लिस्ट, ऑलवेज मेक अ लिस्ट। आपको याद होगा कि जब हम लोग भी वाइवा की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू टू मेक अ लिस्ट। मैंने आपको यही सजेस्ट किया था। जब आप वाइवा में जाओगे, पेयर होगे, अपने पेशेंट को चेक कर रहे होगे, तो साथ साथ आप अपनी एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस की लिस्ट साइड पे लिखते जाना, ताकि कोई पॉइंट भी आपसे मिस ना हो। इसी तरह आप जब इस पे पहुंच जाते हो कि अच्छा ये इस डायग्नोसिस पे या डीडी पे पहुंच जाते हो, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस की एक लिस्ट साइड पे लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये बहुत अहम है। अब मैं इसकी एक मिसाल हम लेते हैं कि जैसे
आपने पेशेंट की मालूम पट्टी एसेस की है, ठीक है, तो आप उसको एक साइड पे मेंशन कर रहे हो। आपने पेशेंट का एएसए देखा है, आपने पेशेंट का सर्जिकल रिस्क स्कोर आपने आपने लिखा है। तो आप इसको जब जब आप इनको साइड पे आप लिखते जाओ और जब आप इसको प्रेजेंट करोगे तो आप इसको मैंने बहुत कंपोस्ट, ठीक है, बहुत कंपोस्ट और क्लियर कट विथ कट ऑफ वैल्यूज के साथ आप एग्जामिनर के सामने डाटा प्रेजेंट करो। आप बताओ कि माई पेशेंट दिस 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 ऑफ दिस एज दिस जेंडर, ठीक है, उसकी बताओ। उसके बाद आप बताओ कि ASA2 विद सर्जिकल रिस्क, इंटरमीडिएट सर्जिकल रिस्क, मोर देन 4 METs, ठीक है, हाइपरटेंशन JNC स्कोर दिस, मालूम पट्टी स्कोर दिस, विद माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एस्थमा व्हाटसोएवर, ओबेसिटी ग्रेड दिस। आप देखो क्या इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, आप देखो क्या इंप्रेशन पड़ता है। लाइक आप तो, मैं आपको बीइंग एग्जामिनर आप बताऊं कि आप समझो कि एग्जामिनर का दिल जीत लिया। आप इतने कट ऑफ वैल्यूज के साथ जब आप अपने पेशेंट का डाटा प्रेजेंट कर रहे हो, इससे दो चीजें पता चलती हैं कि आपको उन पे कितनी ग्रिप है, यू नो ईच एंड एवरी स्कोरिंग सिस्टम, आपने उसको कितना अच्छा वेल पुट किया है, और आपको ये पता है इनको कहाँ यूज करना है, उन सारे स्कोरिंग सिस्टम्स को आप उनकी कट ऑफ वैल्यूज के साथ जब अपना पेशेंट का डाटा प्रेजेंट करते हो। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे थर्डली एक और चीज है कि स्पेसिफिक केस सिनेरियोज होते हैं। जैसे फर्ज करें केस ऑफ थोरेकॉटमी है, लोबेक्टमी, नोमोनेक्टमी है, तो अगर आपने उसके रेलेवेंट सिस्टम की एग्जामिनेशन नहीं की है, या आपने एग्जामिनर के सामने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया है कि निमोनेक्टमी का पेशेंट है तो इसमें रेस्पिरेशन तो रेलेवेंट है लेकिन सीवीएस रेलेवेंट नहीं है, सो यू मिस योर चांस। सही सही। अच्छा मैडम, इसमें जो लॉन्ग केस करते हुए अगला आपको पता है कि जो सेगमेंट होता है वो मैनेजमेंट का ही होता है। तो मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या गाइड करेंगी कि कैसे करनी है मैनेजमेंट के, कि एग्जामिनर इसे अप्रोप्रिएट कंसीडर करे? ओके नाजिश, जैसे कि मैं पहले भी कुछ चीजों में बार बार कह रही हूँ कि बी ऑर्गेनाइज्ड, बी क्लियर, बी फोकस्ड, हर चीज की एक लिस्ट बना लें, हर चीज को कैटेगराइज कर लें, ठीक है। इसी तरह से मैनेजमेंट प्लान के बारे में भी यही सजेस्ट करती हूँ कि इसको, अगर उसमें सर्जरी का इनपुट है कहीं पर तो उसको आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए, ठीक है। उसके 3 कैटेगरीज आप में इसको डिवाइड कर लीजिए। प्री ऑपरेटिव एनेस्थेटिक प्लान होगा आपका, इंट्रा ऑपरेटिव एनेस्थेटिक मैनेजमेंट होगी, उसके बाद आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी, ठीक है। वो जब आप अपने सारी जो इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में उस टाइम जमा हुई हुई, आपके दिमाग में जमा है, आप उसको ना ऑर्गेनाइज कर लेते हो, उसका सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। तो उससे आपको खुद भी, ना सिर्फ ये कि आपको खुद अपना सारा डेटा प्रेजेंट करने में आसानी होती है, उसमें एग्जामिनर को भी आपसे क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी हो जाएगी, फिर आपको ही हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब जो है वो बात आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस पे, जो कि एक एनेस्थेटिक, जो भी एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनका एक सोल कंपोनेंट है। और अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक एग्जामिनर का जो है वो शो स्टॉपर क्वेश्चन होता है। ओके नाजिश, ये आप देखें कि मैं हमेशा से ये कहती हूँ, कॉम्प्लिकेशंस को हमेशा माइंड में रखिए। देखिए अगर आप एक मेडिकल सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं तो क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन जरूर होगी। हर मेडिकल इंटरवेंशन की एक कॉम्प्लिकेशन होती है। वो कोई आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, आप कोई ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर होगी। तो जब भी आप, पहली बात, तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकली भी कोई प्रोसीजर करने जाएं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को माइंड में रखें कि ये हो सकती हैं और उसके लिए हमने ये करना है। एग्जाम में कैसे आप कह सकते हैं एग्जामिनर कोई बताते हुए कि नहीं इसकी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, हमसे तो नहीं हुई आज तक, डोंट से दैट। आप उन्हें बताइए कि हाँ इतने परसेंट चांस है फला कॉम्प्लिकेशन का होने का फला प्रोसीजर के बाद, एंड दैट्स हाउ आई विल मैनेज इट लाइक दिस। मसलन हमने पेन मैनेजमेंट के हवाले से कैंडिडेट से कोई क्वेश्चन किया और हमने उनसे पूछा कि आप इसे क्या पेन के लिए मैनेज करेंगे। दे जस्ट ऑप्टेड फॉर रीजनल एनेस्थीसिया एंड वो जस्ट आस्क द कैंडिडेट के रीजनल एनेस्थीसिया देंगे, अच्छा क्या देंगे, पिपीवा कैन दे रहे हैं, ओके पिपीवा कैन दे रहे हैं, तो उसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वगैरह, एंड दे वर लाइक कि नहीं इसमें तो कोई साइड इफेक्ट, इसकी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, कि हाउ कैन यू मिस द लास्ट टॉक्सिसिटी इन नर्व ब्लॉक्स, चाहे वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, एंड देन दे जस्ट जस्टिफाइड ट्राइड टू जस्टिफाइड देयर इग्नोरेंस बाय सेइंग दैट कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड है ना, अल्ट्रासाउंड गाइडेड है ना, तो हथियार किसी गलत बंदे के हाथ में आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको यूज करना आता होगा। आप समझ रहे हैं ये बात? आई होप कि इस ये बहुत डीप मैसेज है, और कि
कभी भी ओवर इंथुजियास्टिक हो के मत ये कहिए या सोचिए कि इसकी तो ये चूंकि एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है, इसकी तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो नहीं सकती। इवन अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स में भी ब्लीड हो सकता है, हीमाटोमा बन सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है अगर आपको नीडल ही नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल मैडम, ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो कि एक मेजर ड्रास्टिक इफेक्ट क्रिएट कर जाती हैं। अच्छा मैडम, जो कैंडिडेट्स अभी इस अटेम्प्ट या इससे पहले अटेम्प्ट पे नहीं क्लियर कर सके, तो आप उन्हें एक तो क्या मैसेज ऑफ इनकरेजमेंट देना चाहेंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि आई टोटली अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड देयर पेन, देयर सेंटिमेंट्स एंड देयर फीलिंग्स। आई आई डू अंडरस्टैंड, and I would say with deep compassion that do allow yourself to process the emotions and give yourself grace to go through the grief of failure. But then focus on the constructive steps as well. Like it's natural to feel disappointment. Like, okay, that's fine. But talk to your mentors, colleagues, or your family, friends. Okay, but do not dwell on the self blame or the low self esteem पे चले जाओ. ठीक है, victim mindset पे आ जाओ कि खुद को इतना इतना बुरा भला कहना शुरू हो जाओ कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, कि मैं तो हमेशा नाकाम हो जाऊंगा जिंदगी में। इतनी लो सेल्फ स्टीम पे, लो सेल्फ वर्थ के ऊपर, जस्ट एग्जाम की बेस के ऊपर आप जो है मत, ठीक है। देखो, हर्डल्स आते हैं लाइफ में, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स नॉट अ रोड ब्लॉक। ठीक। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट के गो थ्रू दिस पेन, बट इसको लिंगर ऑन मत करिए, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज है फॉर दोज हु कांट गेट थ्रू दिस टाइम। अच्छा जी, मैडम, जो ये फीडबैक रिसीव होता है एक एग्जाम की, जब अटेम्प्ट मिस हो जाती है तो वो अपने सीनियर से भी पूछते हैं कि हमसे हमने ये सवाल किया था तो हमें इसका ये ऐसे जवाब देना था या फिर हमने ऐसे दिया था जवाब। तो ये जो पूरा फीडबैक का प्रोसेस होता है, तो एक एक कैंडिडेट को इसे कैसे यूज करना होता है? देखिए नाजिश, आपने खुद ही अपने अपने क्वेश्चन का आपने आंसर भी खुद ही दे दिया, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। आई वुड से कि डू एक्टिवली सीक फीडबैक फ्रॉम द एग्जामिनर्स। अगर पॉसिबल है अपने सुपरवाइजर से करिए, ठीक है, और उनसे फीडबैक जरूर लें। और उन कैंडिडेट से जरूर फीडबैक लीजिए जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आप क्यों उस स्पेशल केस में या उस टेबल वाइवा के उस क्वेश्चन में या लॉन्ग केस में आप क्यों पास नहीं कर पाए, जबकि वही टेबल वाइवा आपके दूसरे कोलीग ने पास कर लिया, आपके दूसरे फ्रेंड ने पास कर लिया है, ठीक है। तो आप उनसे जरूर पूछें कि उसने क्या आंसर्स किए थे, उससे क्या क्वेश्चंस किए गए थे, फिर अपने क्वेश्चंस आंसर्स को उससे कंपेयर करिए कि आपसे क्या क्वेश्चन हुए थे, आप उनका कैसे आंसर किया था। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये जज करने में हेल्प मिलेगी कि वेदर इट वाज लाइक सम नॉलेज गैप, or was it the lack of clinical reasoning, or there were some communication issues, ठीक है। So this targeted feedback is really valuable for your own improvement, ठीक है। ओके मैडम। अच्छा मैडम, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले ना मेरे जहन में एक सवाल था, और ये सवाल हर कैंडिडेट का ही होगा आई गेस, कि अगर एग्जामिनर किसी आंसर से अनॉइड होता है या हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते किसी एक आंसर से, आप चलें इसको कंसीडर कर लें, तो क्या कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट हो सकती है किसी एक सवाल के ऊपर? या फिर डू यू टेल अस कि क्या एग्जामिनर बाइस्ड होते हैं? नादिश, ये काफी सेंसिटिव क्वेश्चन आपने किया है और मैं इसका आंसर जरूर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। Now, that sentiment, like while very painful for the candidate, is something I want to address directly and transparently. Okay, to be very honest, you know how many examiners are there, Nazish? Like 12, 10, 15, 12 से 15 तो होते हैं एक टोक्स के ऊपर, ठीक। और फोर होते हैं टेबल वाइवा पे, ठीक है, 2 होते हैं लॉन्ग केस पे। तो नाजिश, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, डू यू थिंक दैट एक क्वेश्चन का गलत आंसर, जिसका सिर्फ एक एग्जामिनर के पास ओनली 5 मार्क्स थे, उसकी बेस पे ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है? नो मैडम, अगर मैं अपने केस की बात करूं कि दैट्स रियली
doesn't happen in my case also, and I'm blessed to have the examiners that are really cooperative, alhamdulillah. और उन्होंने मुझे जस्ट अगर मैं कहीं मिसलीड भी हो रही थी तो जस्ट ऐसे लीड शो किए और मुझे वापस ट्रैक के ऊपर ले आए. दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आई वॉन्ट टू रीअश्योर एवरीवन लिसनिंग, स्पेशली दोज हु डिड नॉट क्लियर द एग्जाम लाइक दिस टाइम. माय डियर कैंडिडेट्स, just remember one thing: examiners are absolutely not in that room with the intention to fail anyone on the personal grounds. ये बात तो आप समझ लें, ठीक है? That is the fundamental misunderstanding of our role and our commitment to our profession. Okay, when a candidate doesn't meet the required standard, it's not a personal attack. It's an objective assessment before they can be entrusted with independent patient care. ठीक है? Like I understand that Viva environment, yes, it can feel intense and we might ask challenging questions or follow up on the weaknesses, but that is not to be very punitive. ठीक है? पनिशमेंट के लिए नहीं होता है. हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या किसी बात पे कुछ गलत आंसर दे दिया है तो हमने वहां पे प्रॉम्प्ट किया, उसको रोका है या उसको पॉज, लाइक, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज को अंडरस्टैंड देखने के लिए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, अंडर प्रेशर आप रीजनिंग कर सकते हो या नहीं, ठीक है? और समटाइम्स, यस, समटाइम्स इन दिस प्रोसेस द इंटरेक्शन माइट फील लाइक एन इंटेरोगेशन. फील हो रहा होता है कि बहुत सख्त क्वेश्चनिंग हो रही है, बट it's meant to be rigorous assessment and nothing more. Like if an examiner has stopped one of the resident, that why is she mentioning all the labs including viral markers? मेरे एक रेजिडेंट ने जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, उन्होंने मुझे एक एग्जामिनर के बारे में फीडबैक दिया कि मैं लैब्स बता रही थी तो एग्जामिनर ने मुझे टोका कि सब लैब्स क्यों बता रही हो, कम टू द पॉइंट. एंड शी जस्ट फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट कि मैं तो सही बता रही थी, मैं सारी लैब्स तो बताते हैं मैडम, हम सब लैब्स तो कराते हैं. तो मैंने इसको कहा कि देखो, एक्चुअली आपको वहां पे टोकने का मकसद ये था कि टाइम कम था, अभी क्वेश्चंस बहुत रहते थे और अब इररेलेवेंट चीजों की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने आपको बेसिकली लीड किया इस तरफ कि यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक and enlist the relevant investigations in the context of patient diagnosis. ठीक है? Just to save your time. उसका एग्जामिनर का तो कोई टाइम जाया नहीं हो रहा ना, उन्होंने तो 1 आवर बैठना है, आपका टाइम जाया हो रहा था. और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी कि एज एग्जामिनर आवर प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी. ठीक है? हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है एज एग्जामिनर. बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है ये, ठीक है? और इसके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए. हमारी कोशिश ये है कि एटलीस्ट हम सेफ एनेस्थेटिस्ट की एक केप प्रोड्यूस कर सकें. ठीक? ऐसे एनेस्थेटिस्ट प्रोड्यूस कर सकें जो कि मुस्तकबिल में जिन्होंने हमारा भी इलाज करना है, हमारी फैमिलीज का भी इलाज करना है. ठीक है? एनीवेज, दूसरी बात लास्टली मैं ये कहूंगी कि जस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट एज एग्जामिनर्स वी आर ऑफन लाइक योर सीनियर क्लिनिशियंस. ठीक है? टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, एंड वी टेक अवर रोल वेरी सीरियसली बिकॉज वी are assessing future consultants who will be not only our colleagues and who will be joining our ranks as well, and they will be caring for our patients. So candidates should not take it as something personal, rather they should take it as a challenge and the opportunity to grow. So that's all, Nazish, from my side. जी मैडम. चलिए Nazish, so it was really nice having you with us today. थैंक यू मैडम फॉर सच अ नाइस वर्ड्स, जो है कि सबको इससे बेनिफिट हासिल हो इंशाल्लाह. या इंशाल्लाह बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ ये पॉडकास्ट किया है. किसी को बिलिटल करने के लिए नहीं किया, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया गया, किसी का नाम नहीं यूज किया गया, किसी स्पेशल इंसिडेंट्स की तरफ हमने पॉइंट आउट नहीं किया है. सिर्फ एक जनरली, जैसे मुझे बहुत से कैंडिडेट्स का फीडबैक भी रिसीव हो रहा था, तो ये उसको बेस बनाकर ये पॉडकास्ट किया है. आई होप इससे कुछ लोगों का जरूर भला हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच ओके नाजिश फॉर मैडम, जॉइनिंग. थैंक यू. ओके, थैंक अल्लाह यू मैडम. हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.